So class, today we will talk about segmentation and we will be involving activity-based costing in a test. So now, activity-based costing can help identify how costs shared by more than one segments are traceable to individual segments. हमने कहा था जो cost है आपकी, वो आपने हर segment को अलग-अलग allocate करनी है. लेकिन कौन सी cost allocate करनी है? Only the traceable fixed cost, not the common fixed cost. Common fixed cost को allocate नहीं करना. वो allocate नहीं होगी, वो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस में से माइनस होगी, सॉरी रेवेन्यू में से माइनस होगी, और वो जब माइनस हो जाएगी दैट विल बी द लास्ट थिंग, और उसके बाद आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का नेट इनकम होगा. जो आपके पास सेगमेंट का सेगमेंट मार्जिन आएगा वहां तक सिर्फ ये माइनस हुई होगी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, कॉमन फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं. ओके, नाउ here is a question. Assume that three products 9 inch, 12 inch and 18 inch pipe share 10,000 square feet of warehousing space. So the total warehousing space is 10,000 square feet. 10,000 square feet का आपका पूरा एक warehouse है जहाँ पे आप चीजों को स्टोर कर रहे हैं. और क्या क्या चीजें आप स्टोर कर रहे हैं? तीन प्रोडक्ट्स हैं, 9 inch, 12 inch and 18 inch pipe. तीन किस्म के पाइप्स हैं, which is leased at a price of 4 per square foot. 4 per square foot is the charge which you need to pay. 10,000 स्क्वायर फुट है टोटल, तो आपने टोटल कितने पे करने हैं? 10,000 into 4 equals 40,000. क्लियर हो गया? If the 9 inch, 12 inch and 18 inch pipes occupy 1,000, 4,000 and 5,000 square feet respectively, then ABC can be used to trace the warehousing cost to the three products as shown. Now, if you know the relative measure or the relative portion of each and every component, अगर मेरे पास तीन products हैं and I know the relative portion of these three products in out of total, so I can easily allocate the cost. Cost मेरे पास total है 4 per square foot and you have a total of 10,000 square feet. So that means your total rental cost is how much? 40,000. ये total हो गई ना आपकी. अच्छा, अब आपको बताना है कि आपके पास तीन products हैं. You have three products, 9 inch, 12 inch and 18 inch pipes. ये आपके पाइप्स हैं और 9 inch pipes जो है occupy 1,000 square feet. इस 4,000 square feet, sorry 10,000 square feet में से 1,000 square feet ये occupy कर रहा है, 4,000 ये occupy कर रहा है और 5,000 ये occupy कर रहा है. तो अगर total cost आपके पास 40 है, so it's simple allocation जो हम लोगों ने सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए किया था. This 1,000, this total is 1 plus 4 plus 5 equals 10,000. So now you can easily allocate कि 1,000 portion out of a total of 10,000. ठीक है? So that means 1,000 out of a total of 10,000 and the total rent is 40,000. So you can easily find out इसका portion कितना है. जी 4,000. Okay? Now for this one it will be 4,000 divided by 10,000 multiplied by 40,000. So this would be 16,000. Sir, 4 multiplied by 4 multiply भी करना है. 4 multiplied 5,000. 4 multiplied by 5,000. किधर? सर ये डायरेक्ट बता रहा है क्या? Direct 4 रेट है तो 5. अच्छा 4 रेट है. ठीक है, आपने पहले रेट निकाल दिया, ये भी सही है. उधर से भी आप कर सकते हैं. ठीक है, वेल एंड गुड, फाइन. ओके, 5,000 divided by 10,000 multiplied by जी 40,000. So that will give you a total of 20, and if you add all three it should be equal to 40. Bas, done. Easy allocation आसान है. सर अगर यही कंडीशन होती है और हमें इंडिविजुअली ना बताया होता कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम उसको फिर कॉमन फिक्स्ड कॉस्ट की तरह डील करते हैं. कॉमन फिक्स कॉस्ट से ट्रेड करते हैं. ओके, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई चीज ट्रेसेबल से कॉमन नहीं बन जाएगी. ठीक है, एक बात तो ये दिमाग में रखना. हाँ, अगर मैं इस तरह कह दूं कि मेरे पास एक बिल्डिंग है और उसके अंदर मुझे नहीं पता कि कितना स्पेस कौन सी चीज ले रही है, और उसमें एडमिन भी है, उसमें मार्केटिंग भी है, उसमें सेलिंग भी है, उसमें सब बैठे हैं, देन इट वुड बिकम अ कॉमन फिक्स कॉस्ट. या अगर आप कहें कि वो पाइप्स इतने स्कैटर्ड पड़े हैं कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. हम सब एक कमरा है से, और एक कमरे के अंदर मेरा स्टोर भी है और सब कुछ है.
या सिर्फ चले, लेट्स से एक मेरा स्टोर है लेकिन मुझे नहीं पता चलता, सब कुछ मिक्स पड़ा हुआ है, पाइप्स पड़े हुए हैं उसमें 9 इंच वाला भी है, उसके ऊपर शायद 10 इंच वाला पड़ा हुआ है, उस तरफ 18 पड़ा हुआ है, एक 9 उधर पड़ा हुआ है, एक 9 इधर पड़ा हुआ है, सो आई हैव नो आईडिया कि कौन सी कितनी स्पेस ले रहा है, देन यस इट विल बी अ कॉमन फिक्स कॉस्ट। फिर उससे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करूं, अगर हमारे पास इसी कंडीशन में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो, तो अब जब मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट को एज अ सेगमेंट ले रहा हूं और इसकी मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो क्या मुझे उसमें रेंट जो है उसको किसी तरीके से एलोकेट करना नहीं, चाहिए? अगर आपके पास इफ देयर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ कॉमन फिक्स कॉस्ट, फिर तो आप नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो हमने शुरू में ही कहा था कि एबीसी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एंड दैट्स व्हाई वी सेड कि एबीसी वुड बी अ बिट कॉस्टली एंड इट वुड बी अ बिट एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव होगा, कॉस्टली होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको मेंटेन करना और इसको स्टार्ट करना, क्योंकि इतनी कॉस्ट नहीं होगी, इतनी मैन पावर नहीं होगी आपके पास, तो आप नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको बहुत लेयर्स ऑफ क्लासिफिकेशंस चाहिए, तो अगर वो है तो देन यू कैन डू एबीसी, अदरवाइज यू कैन नॉट डू एबीसी। एबीसी थोड़ा मुश्किल था, आसान नहीं। ओके, गॉट दिस आइडिया क्लास? गॉट दिस आइडिया? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन, लेवल्स ऑफ सेगमेंटेड स्टेटमेंट्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेगमेंटेड स्टेटमेंट्स। हमने देख लिया कि ये जो डिवीजन, ये जो एलोकेशन है, ये किस तरीके से होती है, सही। नाउ वेबर इनकॉर्पोरेशन हैज टू डिविजन्स, कंप्यूटर डिवीजन एंड टेलीविजन डिवीजन। Let's look more closely at the television division's income statement. दो डिवीजन हैं और मैं टेलीविजन की जो इनकम स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। Our approach to segment reporting uses the contribution format. This is what we said before कि segmented income statements contribution format को follow करेगा। Okay, so this is your contribution format and this is your segmented income statement for the television division. Now for the television division, the sales are 300,000, 3 लाख की सेल्स है and a variable cost of goods sold of 120,000, other variable costs are 30,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि this is CGS, variable CGS, और ये variable बाकी cost, non manufacturing cost, तो ये सारी cost equal 150,000 and when I subtract variable cost from sales 300 minus 150, I get 150,000 of contribution margin. ये भी clear? And when I subtract fixed cost, which should only be the traceable fixed cost, because I am talking about segmented income statement, not the income statement of the whole organization. अगर वो होता तो मैं यहाँ पे total fixed cost लिख लेता, लेकिन सिर्फ segmented है, so traceable fixed cost. When I subtract that, I get a division margin of 60,000. Clear? ये clear है यहाँ? ओके, अब आगे चलते हैं कि अब इस डिवीजन में और क्या क्या चीज है। नाउ टेलीविजन डिवीजन, दिस इज व्हाट इट सेज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सेगमेंट मार्जिन, टेलीविजन कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट, सो दिस इज द सेगमेंट मार्जिन और द डिवीजन मार्जिन। ये भी क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्लास? लेट्स मूव ऑन नाउ लेट्स फाइंड आउट अबाउट टू डिफरेंट डिविजन्स। अब हमारे पास दो डिविजन्स थे। When we started, we said there are two divisions, and we have a computer division and we have a television division. So let's move on. मेरे पास दो डिवीजन हैं, टेलीविजन और कंप्यूटर, और इससे मिलकर टोटल और ऑर्गेनाइजेशनल का इनकम स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। टेलीविजन की हम डिटेल देख चुके थे थोड़ी देर पहले कि 300,000 and 60,000 was the division margin. कंप्यूटर का सेल्स है 200,000. So whole sales या total sales would be 500,000. Variable cost 80 plus 150 equals 230,000. Contribution margin 200 minus 80 equals 120. ये हम पहले देख चुके हैं 150. 120 plus 150 equals 270,000. Traceable fixed cost 80. So 120 minus 80 equals 40 is the division margin of computers. 80 plus 90 equals 170,000. Which is the traceable fixed cost for the whole company. Yeah. Division margin 40 plus 60 equals 100,000. अब जो भी common cost है वो आप यहाँ पे लिख देंगे and you will get the net operating income for the whole company. Clear? Clear? Let's say the common cost is 25,000 and your net operating income then would be 75,000. इस common cost को यहाँ पर allocate नहीं करना, ये allocate नहीं होती कभी, common fixed cost कभी भी allocate नहीं होती. Okay, so common costs should not be allocated to the division. These costs would remain even if one of the divisions were eliminated. Clear? Yeah, clear.
Okay, let's move on. As previously mentioned, fixed costs that are traceable to one segment can become common if the company is divided into smaller segments. अब आते हैं जो मेन पॉइंट। हमने ये कहा था कि कोई भी कॉस्ट हर वक्त ट्रेसेबल या फिक्स नहीं रहेगी। अगर मैं सेगमेंट्स को चेंज करूं तो वो उसका नेचर ट्रेसेबल से फिक्स या फिक्स से ट्रेसेबल बन जाएगा। ठीक है, बन सकता है। सो यू नीड टू लुक एट द सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है। ओके, अब ये आपको बता रहा है कि फिक्स कॉस्ट दैट आर ट्रेसेबल टू वन सेगमेंट, अगर वो ट्रेसेबल टू वन सेगमेंट है, कैन बिकम कॉमन, वो कॉमन फिक्स कॉस्ट बन जाएगा इफ यू फर्दर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, अगर मैं उसको और भी फर्दर स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दूं। किस तरह? लेट्स फाइंड आउट। वी लुक्ड एट टेलीविजन डिवीजन। हमने टेलीविजन डिवीजन को गौर से देखा कि वो उसका सेगमेंट मार्जिन क्या है। अब अगर मैं आपको फर्दर बताऊं कि टेलीविजन में फिर दो डिवीजन या दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट है रेगुलर टीवी का और एक है बिग स्क्रीन टीवी का। ठीक है, वो स्मॉल स्क्रीन्स हैं और ये बड़ी स्क्रीन, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं व्हिच वी मेक इन टेलीविजन। So if I find out the income statement or if I make the income statement of a regular TV and a big screen TV, तो इन दोनों से मिलकर इस सेगमेंट का इनकम स्टेटमेंट बनेगा और इससे और कंप्यूटर से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का इनकम स्टेटमेंट बनेगा। यू फॉलो इट? Yes, sir. फॉलो कर रहे हैं इसको? ठीक है, आगे चलें। अब अगर इन दोनों का अलग अलग इनकम स्टेटमेंट है तो वो लेट्स से कोई फिगर्स है जो उसने आपको दिए हैं। Big screen is 100,000 and 200,000 is the sale for regular. तो आपके पास टेलीविजन डिवीजन की सेल्स कितनी होगी? 300,000. 300. 55 plus 95. 55 plus 95. 150. So your contribution margin is how much? 150. इन दोनों को रोल करेंगे यार। सही? Okay. अब आ जाए traceable. Traceable fixed cost is 80,000. 70,000 is the product line margin. आप जरा पीछे जाके देखें, चेक करें जरा। 300,000 was television sales. 300,000. सही है? 150,000 was variable cost. सही है? Okay. 150,000 आपके पास contribution margin आ गया। ये भी सही है? Traceable fixed cost. Traceable fixed cost हमारे पास जब हमने इससे पहले देखा तो टेलीविजन डिवीजन का ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट 90,000 था, लेकिन जब मैंने उसको फर्दर स्लाइस कर दिया दो प्रोडक्ट लाइंस के तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ 80,000 आ रहा है मेरे पास ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये फिगर डिवीजन का टोटल आ रहा था 90, लेकिन इंडिविजुअल्स को जब मैं देखता हूं तो वो आ रहा है 80। इसका मतलब 10,000 इसमें फर्क है। So that 10,000 actually cannot be traced to regular TV or to big screen TV. That means it must have been a common fixed cost of division television, and then the segment margin for television division would be 60,000, which is what we started a bit earlier. 60,000. लेकिन वो तब आएगा जब उसकी कॉमन फिक्स कॉस्ट को आप सबट्रैक्ट करते हो। ठीक, ये कॉमन फिक्स कॉस्ट यहां पर नहीं आ सकती, ये यहां पर आएगी। अब ये देखें, इससे थोड़ी देर पहले जब मैं सिर्फ टेलीविजन डिवीजन की बात कर रहा था तो मेरे पास ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 90,000. बट ओवर हियर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिविजन्स विदिन टेलीविजन डिवीजन तो उसकी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट कितनी बन गई? 80. तो इसका 10,000 पोर्शन ऑफ ट्रेसेबल became common from traceable. तो ये आपसे कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त एक कॉस्ट एक ही तरह रहे। अगर आप फर्दर किसी भी डिपार्टमेंट को फर्दर स्लाइस डाउन करेंगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा और वो ट्रेसेबल से कॉमन हो जाएगा। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर, ये 10,000 जो कॉमन कॉस्ट इसका है, ये तो ट्रेसेबल कॉस्ट पूरी टेलीविजन डिवीजन में है। टेलीविजन डिवीजन में पूरा 90 ही आएगा, ट्रेसेबल आएगा। ठीक है, लेकिन उस वक्त मैं डिवीजन कर रहा था पूरी
कंपनी की अकॉर्डिंग टू टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मेरे पास होती है, टेलीविजन, कंप्यूटर्स। फिर मैं आ गया टेलीविजन डिपार्टमेंट के अंदर, आ गया, फिर मैं कहता हूँ यार टेलीविजन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास फिर दो किस्म के टेलीविजन हैं, फ्लैट स्क्रीन, बिग स्क्रीन। ठीक है, फ्लैट स्क्रीन था, रेगुलर, बिग स्क्रीन, तो फिर दो डिवीजन आ गए। फिर अगर हो सकता है कि मैं आपसे ये कहूं कि रेगुलर टीवी के अंदर मेरे पास चार और डिवीजन हैं, रेगुलर का 14 इंच स्क्रीन, 15 इंच और 16 इंच, ये सब रेगुलर। और बिग स्क्रीन के अंदर मेरे पास फिर हैं 60, 80 और 100 इंच। तो हो सकता है कि इनके जो ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है वो सब मिलकर जो रेगुलर का ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट है इसके बराबर ना हो सकता है वो से कम, क्योंकि याद रखेंगे किसी भी डिवीजन का जो हेड होगा, जो उसकी सैलरी वो अगर मैं सब टीवीज को अलग अलग कर दूं तो फिर तो वो कॉमन फिक्स कॉस्ट है ना, वो उसकी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं 16 को खत्म भी कर दूं, सो वुड द रेगुलर टीवी का जो मैनेजर है उसकी सैलरी रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी, उसको तो मैं नहीं निकाला, मैं तो सिर्फ एक 16 इंच खत्म कर दूं। ठीक है, सो इट्स अ कॉमन फिक्स कॉस्ट फॉर दैट डिपार्टमेंट। लेकिन अगर यहां से देखूं तो ये ट्रेसेबल है। तो वो ये कह रहा है कि बात चीजें जो एक सेगमेंट वाइज मैं देखूं तो ट्रेसेबल नजर आएगी, लेकिन अगर मैं फर्दर कोई और सेगमेंट बना दूं तो वो कॉमन बन जाएगी, बस दैट्स इट। So study thus it's common for the division but not for the organization. It's common for the television division but not for the organization. For the organization it's a traceable. बिल्कुल सही। जी, clear so far? Clear so far? Yes, sir. Okay, FASB क्या कहता है? Financial Accounting Standards Board, all of you are familiar with FASB? FASB clear है ना? ऑडिटिंग भी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग भी स्टैंडर्ड्स पढ़ चुके हैं अब तक बहुत, ठीक है, पढ़ रहे हैं ना आप लोग? ओके, रिपोर्टिंग पढ़ चुके हैं एक कोर्स, रिपोर्टिंग का कोर्स नहीं पढ़ा आपने? 7th में, ओके। So the financial accounting standard boards now requires that companies in the US include segmented financial data in their annual reports. Annual report के अंदर segment की information आपने दी, तो आपको फिर तो पता नहीं होगा पाकिस्तान में आप लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं information। इतनी annual reports देखी होंगी कि आइडिया होगा या नहीं? नहीं दे रहे, consolidated नहीं देखी, रिपोर्ट्स नहीं देखी या रिपोर्ट्स देखी हैं, सेगमेंटेड नहीं। सेगमेंटेड नहीं, ठीक है, कंसोलिडेटेड होती है, ओके। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट एसोसिएटेड कंपनीज या सब्सिडियरी कंपनीज तो फिर उस केस में कंसोलिडेशन भी होती है और फिर सेपरेट भी आती है, ओके। ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, ठीक, ग्रुप ऑफ कंपनीज पढ़िए नहीं पढ़ी? Minority shareholders नहीं पढ़ा? Okay, let's move on. Companies must report segmented results to shareholders using the same methods that are used for internal segmented reports. Methods आपके same होंगे जो आप internal के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Since the contribution approach to segment reporting does not comply with GAAP, it is likely that some managers will choose to construct their segmented income financial statements using the absorption approach to comply with GAAP. हमने शुरू में कहा था कि ये जो फॉर्मेट है, ये वाला जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर्मेट, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट, ये गैप नहीं है, गैप कभी भी ये नहीं कहता। गैप जो कहता है वो कोई नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है जो आप इससे पहले पढ़ते थे, which is called as absorption approach, where you subtract CGS, get a gross margin or gross profit, and then you subtract your operating expenses to get your net income before interest and tax of this month. तो वो ये कह रहा है कि आपने, चूंकि हमने कहा सेगमेंट के लिए ये बनाना है, लेकिन ये गैप से कंप्लाई नहीं करता, ये गैप के मुताबिक नहीं है, तो फिर कुछ लोग एब्जॉर्प्शन अप्रोच को यूज करेंगे क्योंकि वो गैप के मुताबिक है। और कंपनीज जो अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग में जो बनाती हैं सेगमेंट इनकम स्टेटमेंट, वही सेम बनाएंगी एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, सही? But by the way, this is for US, so you do not need to worry about this. Sir, absorption approach क्या है? Absorption approach ये, ठीक है? जो हम लोग पहले पढ़े ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारी होती है। Okay, so let's move on. Now, omission of cost. Cost assigned to a segment
should include all costs attributable to that segment from the company's entire value chain. अगर आपकी वैल्यू चेन है कंपनी की पूरी और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि मिलकर एक वैल्यू चेन बना रहे हैं, तो जो आप कॉस्ट एक सेगमेंट को असाइन कर रहे हैं उसमें वो सारी कॉस्ट आनी चाहिए जो कि किसी भी इस वैल्यू चेन के अंदर किसी भी कंपनी की जो वैल्यू चेन है वो किसी भी सेगमेंट को एट्रीब्यूटेबल हो तो वो उसके अंदर आनी चाहिए. Which means if there is any cost anywhere in the value chain, कहीं पर भी वो कॉस्ट आ रही है and that can be attributed to a particular segment, चाहे टीवी की कॉस्ट में है, चाहे कंप्यूटर की कॉस्ट में है, चाहे हम एक और चीज ही बना रहे हैं, फ्रिज बना रहे हैं, एसीज बना रहे हैं, जो भी whatever, और अगर वहां पर वो कॉस्ट है तो आपने उसको वहां पर असाइन करना हो. ठीक, क्लियर? जाएगा? ओके. अब अगर आप नहीं करते तो फिर क्या होगा? Inappropriate methods of allocating cost among segments. अब डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और आप जो कॉस्ट असाइन कर रहे हैं वो सही तरीके से एलोकेशन आप नहीं कर रहे हैं. फेलियर टू ट्रेस कॉस्ट डायरेक्टली, जो कॉस्ट डायरेक्टली किसी भी सेगमेंट को जा रही है, हमने कहा वो उसको जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी वैल्यू चेन में किसी भी फंक्शन की, चाहे R&D की एक कॉस्ट है जो कि टीवी के ऊपर हुई है तो वो टीवी की सेगमेंट में जानी चाहिए, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है टीवी की वो टीवी की सेगमेंट में जानी चाहिए. ठीक, अब अगर there is a failure to trace cost directly to a particular segment, आप उसको किसी भी सेगमेंट को वो कॉस्ट ट्रेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, या इनअप्रोप्रिएट एलोकेशन बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एलोकेशन बेस आपका है वो सही नहीं है, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? ओके. कॉमन कॉस्ट एंड सेगमेंट्स. Common cost should not be arbitrarily allocated to segments based on the rationale that someone has to cover the common cost for two reasons. अगर common cost है तो common cost हमने कहा कि attributable आपने नहीं देनी है, ठीक है? उसका कोई भी arbitrary method आपने नहीं इस्तेमाल करना. आप कहें यार कोई allocation base बनाओ, इसको बस allocate कर दो, इसको किसी तरीके से allocate कर दो, तो ये काम आपने नहीं करना. Common cost जो है वो common cost है, वो allocate नहीं होती. तो वो allocate नहीं होती, तो अगर उसको allocate करना है तो फिर कोई आर्बिट्रेरी कोई बेस नहीं बनाना जिसका उस एलोकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. यानी कॉस्ट इज रिलेटेड टू सम एक्टिविटी और आप उसके लिए बेस बना दें डायरेक्ट लेबर आवर्स. आपके पास डायरेक्ट लेबर आवर्स आसान बेस है, बस यही बना दें. ठीक है, तो ये काम नहीं करना. दिस प्रैक्टिस में मेक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट अपीयर अनप्रॉफिटेबल. तो फिर इस तरह होगा कि अगर मैंने डायरेक्ट लेबर आवर्स उसके लिए बेस बना और सब सेगमेंट को डिवाइड कर दिया उसको, तो फिर जिस सेगमेंट की वो कॉस्ट है वो उसके पास नहीं जा रही, तो होगा क्या कि वो सेगमेंट असल में तो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन आपने उसको जबरदस्ती एक कॉस्ट असाइन कर दी तो वो प्रॉफिटेबल से इट वुड बिकम अनप्रॉफिटेबल. Allocating common fixed cost forces managers to be held accountable. और याद रखें कि हमने ये कहा था कि कॉस्ट सेंटर अगर है तो वहां पे आपका कंट्रोल है ना किसी कॉस्ट पर. अगर आप रेवेन्यू सेंटर है तो रेवेन्यू के ऊपर, सॉरी प्रॉफिट सेंटर है तो आपका रेवेन्यू कॉस्ट दोनों पे कंट्रोल है. अब अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉस्ट किसी एक सेगमेंट को शामिल कर रहा हूं, कोई गलत बेस बना, तो क्या उस मैनेजर का कंट्रोल उस कॉस्ट के ऊपर था? उसके ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि वो कॉस्ट वहां पे इनकर ही नहीं होती, वो तो कहीं और पे इनकर होती है. लेकिन आपने कहा था कि सब कॉस्ट को एलोकेट करो, तो बस मैंने जबरदस्ती इसको एलोकेट कर दिया किसी तरीके से, आर्बिट्रेरीली कोई भी तरीका मैंने इस्तेमाल कर दिया. तो अगर आपने इस तरह किया तो उस मैनेजर को आपने वो कॉस्ट असाइन कर दी जो उसके कंट्रोल के अंदर नहीं थी. तो अगर उसके कंट्रोल के अंदर नहीं थी तो वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए. दिस इज रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, जो मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा हिंट दिया था कि रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग. क्लियर है यहां तक? अगर ये थ्योरी क्लियर है यहां तक तो हम इसका एग्जांपल करेंगे. जी, इज दिस थ्योरी क्लियर? If this theory is clear, we will start with an example of this theory. Sir, ये common cost की responsibility कौन लेता है? Clear नहीं होता है. Common cost की responsibility कौन लेता है? Common cost के लिए आप कोई measure ढूंढ लेते हैं, बस कोई measure ढूंढ लेते हैं और आप arbitrarily नहीं, लेकिन उस common cost को किसी तरीके से allocate करके आप ये देख लेते हैं कि उस segment की profitability है कि नहीं. क्योंकि इस तरीके से अक्सर सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बदल सकती.
अब अगर ये कॉस्ट है और इस कॉस्ट को मैं नहीं एलोकेट कर रहा तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि इसकी असली प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। सीईओ की सैलरी नहीं कर सकता, फिर मैं ये सोचता हूँ मैं कहता हूँ यार सीईओ चूंकि सीईओ सबका है तो बस इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं आर्बिट्रेरली। इससे नुकसान ये हो सकता है कि अगर कोई और कॉस्ट है, सीईओ की सैलरी तो चले फिर भी समझ आती है कि दिस मेजर माइट मेक सम सेंस, लेकिन अगर आप सीईओ की सैलरी को इस बात पे डिवाइड कर दें, आप कहें यार हर डिपार्टमेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, लेट्स डू इट ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो आप इसका उससे तो बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर आप इस तरह कर दें तो फिर आपको ये नुकसान हो जाए। और अगर नहीं आप कोई आर्बिट्रेरी मेजर ले लेते हैं which makes a bit sense, तो फिर आपको डिपार्टमेंट की या सेगमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है। अभी हम आगे देखते हैं ना कि हम किसी कॉस्ट को किसी तरीके से कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, ताकि मैं ये देख सकूं कि किसी डिवीजन का प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट have Lake Shore, so this is the company and they have two different segments, bar and restaurant. Sales 800,000 in total, 100,000 इसकी, 700,000 इसकी, total 800,000. Variable cost 310, जिसमें से 60 इसकी, 250 इसकी, 250 plus 60 makes 310. Contribution margin over here is 40, overhead 700 minus 250 is 450, 450 plus 40 equals 490 total CM. Traceable fixed cost is 26 plus 22, 220. That makes a total of 246. So segment margins are 40 minus 26 equals 14. 450 minus 220 equals 230. Segment margin आ रहा है 244. ये common cost है 200,000, जो कि मैं यहाँ पर allocate नहीं कर सकता। ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं किया, ये traceable नहीं थी, मैंने नहीं किया। 244 minus 200 equals 44. ये इसका profit है। Is this clear? Start करें हम। Okay. अब let's say हम चाहते हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से allocate करें। How much of the common fixed cost of 200,000 can be avoided by eliminating the bar? None of them. क्यों? क्योंकि ये common fixed cost है, ये eliminate नहीं होती ना, okay? None. Okay. A common fixed cost cannot be eliminated by dropping one of the segments. अब let's say मैं एक measure निकाल लूँ। सर अगर एक सेगमेंट ऐड कर दी तो उससे ज़्यादा हो सकती है कॉमन कॉस्ट। क्या ये बात हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी? नहीं सर, नहीं पढ़ी थी ना, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि इसका ताल्लुक सेगमेंट के साथ है, सेगमेंट के हटाने से या लाने से अगर कोई कॉस्ट ज्यादा होती है तो वो सेगमेंट की कॉस्ट है, ट्रेसेबल, और अगर किसी कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता तो वो कॉमन। ओके, लेट्स मूव ऑन। सपोज स्क्वायर फीट इज यूज्ड। अब कॉमन फिक्स कॉस्ट के लिए कोई बेसिस नहीं, लेकिन मैं उसको डिवाइड करने, एलोकेट करने के लिए एक आर्बिट्रेरीली एक बेस बनाता हूं व्हिच इज स्क्वायर फीट, एलोकेटिंग द कॉमन फिक्स कॉस्ट ऑफ 200,000। मैंने बना लिया। हाउ मच वुड बी एलोकेटेड टू द बार इफ द बार ऑक्युपाइज 1000 स्क्वायर फीट एंड द रेस्टोरेंट 9000 स्क्वायर फीट। अब अगर बार 1000 है, 1000 स्क्वायर फीट एंड रेस्टोरेंट 9000 स्क्वायर फीट। अब मैंने एक मेजर बना लिया कि यार एरिया वाइज बस देखता हूँ ये कॉमन कॉस्ट है, इसको किसी तरीके से तो करना है, तो बार जो है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू रेस्टोरेंट, तो इसी को बेस बनाकर इस कॉमन कॉस्ट को एलोकेट। सो व्हेन आई एम एलोकेटिंग दिस 200,000, so I'll be actually allocating on the basis of this square feet which is a total of 10,000। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने allocate करना है, so this would be 1,000 out of total of 10,000 multiplied by 200,000, that would make 20,000। अभी थोड़ी देर पहले तक ये सेगमेंट मार्जिन क्या शो कर रहा था? 14 पॉजिटिव ना, और अगर मैंने ये एलोकेशन कर दी, so it will become unprofitable by 6,000 lost now। Okay, let's talk about this one, 230,000, और इसका portion is 9,000 out of a total of 10,000 multiplied by 200,000, so this would be 180,000। So this is still profitable, 50,000।
50 minus 6 equals 44. तो ये इस तरीके से तो सही है कि ठीक है आप कहते हैं कि यार बस दोनों बराबर आ जाए और ये कॉस्ट किसी न किसी को एलोकेट कर दो, लेकिन हुआ क्या कि जब आपने ये एलोकेट किया तो एक सेगमेंट जो कि प्रॉफिटेबल था बाहर आपको पैसे कमा के दे रहा था, लेकिन आपने जबरदस्ती इसके ऊपर ये कॉमन कॉस्ट लगा दी। ठीक है, आपने कहा नहीं बस स्क्वायर फीट की बेसिस पे कर लेते हैं यार, इस कॉमन कॉस्ट को किसी न किसी तरीके से तो करना है, कहीं ना कहीं तो लेके जाना है, बस करो उसको। तो मैंने कर दिया तो ये प्रॉफिटेबल से अनप्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये वो पॉइंट था जो यहां पर आपको समझा। क्लियर? ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक ले लेते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 30 मिनट 20,000 ठीक। ईच सेगमेंट ये भी कर दिया आपने? Yes sir. ठीक। Yes sir. Should the bar be eliminated? No. Why not? because it is profitable. It is profitable. ठीक है, ये कॉमन कॉस्ट थी जो कि आपने जबरदस्ती एलोकेट कर दी। The profit was 44,000 before eliminating the bar. If you eliminate the bar, profit drops to 30,000. अगर बार मुझे कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है, बार मुझे कितना कमा के दे रहा है? 14,000। तो ये 14,000 जो ये कमाता है ये असल में इस्तेमाल होती है इस कॉस्ट को कवर करने, ये इस्तेमाल होती है इस कॉस्ट को कवर करने। अगर इसको मैं हटा दूं यार ये नुकसान कर रहा है, तो ये जो 14,000 ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दिस, वो चला जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि जब ये हटेगा तो यहां पे जो 44,000 का प्रॉफिट है ये 44 से माइनस 14 30,000 पे चला जाएगा। Does this make sense? Does this make sense? Yes sir. ये वही बात है जो हमने डिसीजन मेकिंग में की थी जब हम लोग कॉमन फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, अगर आपको वो याद है। That was exactly the same question, इसी तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्लियर है तक? जी सर मैंने स्टार्ट में यही क्वेश्चन पूछा था जब हम वो पहली एग्जांपल कर रहे थे जिसमें आपने एलोकेट किया था स्क्वायर फीट की बेसिस पे ना, ठीक। तो अब एक कॉमन कॉस्ट हमारे पास है फॉर एग्जांपल रेंट, तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि कितनी हर डिवीजन कितना कितना स्क्वायर फीट इंफॉर्मेशन दी हुई दी हुई है। Okay. लेकिन फिर इट डजंट चेंज द फैक्ट कि अगर मैं एक सेगमेंट को ड्रॉप भी करता हूं तो वो कॉमन फिक्स कॉस्ट है वो तो उस पे इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल रेंट के केस में अगर मैं एक रेस्टोरेंट या बार बंद करता हूं तो वो रेंट और वो सब एक बिल्डिंग है तो फिर तो आपको दे ही देना तो है, फिर हमें वैलिडेट नहीं कर सकते, तो फिर हम एलोकेट नहीं कर सकते। तो तो हम ये ये तो वाली एग्जांपल में एलोकेट क्यों नहीं? पहली वाली एग्जांपल में एलोकेट हुई क्योंकि वहां पे एलोकेशन बहुत ऑब्वियस थी। तो कैसे उस पे मेरे ख्याल से अगर सेगमेंट को ड्रॉप नहीं, वहां पे एलोकेशन बहुत ऑब्वियस थी। वहां पे अगर हम देखें ये एलोकेशन बड़ी ऑब्वियस है कि वो इतनी स्पेस ले रहा है, तो अगर वो इतनी स्पेस ले रहा है इसका मतलब ये इसको आराम से ट्रेसेबल है। सर अगर मैं 9 इंच वाला सेगमेंट ड्रॉप करता हूं, अगर मैं 9 इंच का सेगमेंट ड्रॉप करूं, ओके, तो इस कॉस्ट का ये 1000 स्क्वायर फीट अगर कम हो सकता है, ये ऑब्वियसली कम हो सकता होगा, तभी तो ये बोल रहा होगा कि ये ट्रेसेबल। अगर वो ये कहता कि ये ट्रेसेबल नहीं है तो इसको एलोकेट ना करता। ट्रेसेबल को हम लोग एलोकेट करते हैं, हम कॉमन को एलोकेट नहीं करते। हम कॉमन को एलोकेट सिर्फ ये करने के लिए कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि वो कितना कमा रहा है, लेकिन फिर नुकसान उसका क्या होगा? नुकसान यही होगा कि एक प्रॉफिटेबल चीज को आप अनप्रॉफिटेबल शो कर रहे हैं, और वो शो करने से शायद आप सोचें कि इसको ड्रॉप कर दें, और अगर आप इसको ड्रॉप करेंगे तो असल में आप अपना नुकसान करेंगे। तो आपका जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का 44,000 का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप होकर 30 पे आ जाएगा। ठीक है, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। प्लीज इसको पॉज कर